So let us start once again with the part of electric potential, and let's complete the Gauss's theorem, and then its application and derivation. We'll be discussing it tomorrow once again. Okay, so today I have already posted a lecture which is on solutions, and today now we'll be discussing on the electric potential. Okay, so let's start a new topic which is known as electric flux. Now in the state board books, same concept को हम लोग बोलते हैं TNEI, which is total normal electrostatic induction or total electric induction tubes भी बोलते हैं इसको. What do you mean by the word electrical flux? Flux means flow, something which is moving continuously. Okay. Now electrical flux are by the way those particular lines which are imaginary in nature, but जो हमें लगता है कि किसी भी जगह पर कोई चार्ज है और उसकी वजह से वो चार्ज चारों तरफ अपनी लाइंस एमिट कर रहे हैं. Now these particular field lines are nothing else but is known as electrical flux. So electrical flux line will always be heading from positive towards the negative. It's not actually compulsory but normally ऐसे ही होता है. Now electrical flux of course is a scalar quantity because ये एक ही direction में move करता है from positive towards the negative. जिस भी direction में वो जा रहा होगा common sense है कि वो नेगेटिव की तरफ में जा रहा होगा बिकॉज खुद पॉजिटिव से एमिनेट करता है. सो पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस विल बी एमिनेटिंग द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स. नाउ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इज शोन बाय द सिंबल phi e. उसको phi बोलते हैं, phi e. इट्स नॉट कंपल्सरी बिकॉज अलग अलग बुक्स अलग अलग करते हैं. व्हाट इंपॉर्टेंट इज राइट नाउ इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पार्ट. नाउ गाइज यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है विच इज नोन एज phi e या electrical flux should be equals to E dot ds. But before you understand this word E dot ds, इतना ध्यान रखना पहले ये आया कहाँ से. सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब क्या होता है. So electrical field E should be equals to what? That is phi upon s. अब बोलोगे ये कहाँ से आया. आप यदि याद करोगे इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब क्या था. Electrical field means that particular area in which you can feel the charge. Okay, that particular area which is surrounding a charge in which any particular force can be influenced or felt is known as electrical field. So electrical field किसी जगह पर electrical field ज़्यादा है या कम है आपको कैसे मालूम पड़ेगा. सिंपल, उस जगह पर फ्लक्स कितना है, मतलब उस जगह पर कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं अपॉन कितना एरिया. What is S? S is known as surface area. जैसे सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है आपका 2 pi RH, ऐसे ही स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 pi R square सरफेस एरिया. सो E should be equals to phi upon S. तो आप यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो E dot S should be equals to phi. So this is that particular part. सर फिर ये ds का मतलब क्या हुआ. सिंस हम लोग हर एक चीज़ को बहुत छोटे छोटे टर्म्स में बात करते हैं, so that means that ds is a very small surface area जहाँ से कुछ लाइंस पास हो रहे हैं. So what is electrical flux? किसी एक जगह पर कितना सारा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है. जब भी आप कभी किसी बहुत ही पॉजिटिव बंदे से मिल करके आते हो, who is a very very motivating guy and you feel very energetic, उसके बगल में बैठोगे ना, you feel that aura. So that aura so called is nothing else but is electrical flux. Okay, now so phi E should be equals to E dot ds. What is phi E? Phi E is known as electrical flux. It should be equals to E dot ds. What is E? Electrical field. यदि आपको नहीं समझ में आया तो सिंपल ds को वहाँ लेके जाओगे, दोबारा से यही फॉर्मूला बन जाएगा. So phi E should be equals to E dot ds. Now ds is a very very small area which I have taken. यदि मैंने डॉट प्रोडक्ट है तो आपको याद होगा वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट क्या बोलते हैं. वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला. सो दैट मींस ई डॉट डी एस शुड बी इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा. दैट्स सो सिंपल. सो phi E शुड बी इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा. नाउ देयर इज दिस, लेट अस से सपोज यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और मैंने इस सरफेस को मैंने थोड़ा सा इंक्लाइंड ऐसे में रख दिया है. इस सरफेस के हमेशा नॉर्मल आपका फ्लक्स जाता है, फ्लक्स लाइंस. सो इस एरिया के नॉर्मल, या आप यदि फ्लक्स लाइंस अभी नहीं से समझो तो आप इसको ऐसे देखो. देयर इज दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो कि ऐसे पास कर रही हैं. मैंने बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया है
इस ऑब्जेक्ट का जो भी एरिया वेक्टर होता है, आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एरिया वेक्टर। आमतौर पे एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट एरिया वेक्टर का मतलब होगा यदि ये रहा एक सरफेस तो इसके एक परपेंडिकुलर यदि कोई लाइन जा रही है, दैट इज नोन एज एरिया वेक्टर। सर ये क्यों ले रहे हैं? ये इसलिए लेते हैं बिकॉज डेरिवेशन करने में इजी होता है, अदरवाइज एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इस केस में हम लोग एरिया को वेक्टर मानते हैं। सो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन जा रही है विच इज नोन एज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। सो ये परपेंडिकुलर जो सरफेस के परपेंडिकुलर है और इस लाइन के साथ में कुछ एक एंगल बन रहा है विच आई डोंट नो, maybe it can be 90, maybe it can be 0. So that means what? That this particular part will be theta, जितना भी एंगल बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? E ds cos theta। अब पहला क्वेश्चन आ गया, when can be the flux equals to 0 if the electrical field line and the ds will be having a angle of what? 90 degrees। सपोज कर लो यदि यही इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इलेक्ट्रिकल फील्ड रहती है आपके पास में, द फ्लक्स रहता, और यदि मैंने इस पर्टिकुलर सरफेस को बिल्कुल इसके ऐसे रख दिया होता, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है ऐसे में लाइक दिस, और यदि मैंने बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर एक प्लेट रख दिया है, तो इसका जो नॉर्मल निकलेगा, इस प्लेट का जो नॉर्मल होगा वो कहाँ निकलेगा? ऐसे में। बट ये फील्ड लाइन भी ऐसे आ रही है, ये भी ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्रीज। सो cos 0 should be equals to what? 1 and cos 90 should be equals to 0. That's all. So the angle which it makes with the normal of this particular plate will be known as theta. That's so simple. So E ds cos theta. So यदि सपोज कर लो मेरे पास में E और ds के बीच में यदि मेरा एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, E और सरफेस के बीच में यदि मेरा एंगल 90 का बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? This particular part will be equal to 0. So the flux line associated or T and EI will be equals to 0. Let's come on to the dimension formula of this. So what is the dimension formula? ये यहाँ पर लिखा हुआ है which is ML3T minus 3 A minus 1. But ऐसे कैसे मान लें सर, आपने कुछ भी लिख दिया तो let's see. Simple. उसके लिए पहले मुझे चाहिए क्या होगा? Phi should be equals to E and S. यही चाहिए होगा। सो यदि आपको फाई निकालना है तो आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड का तो फॉर्मूला ध्यान होगा नहीं, आई एम श्योर। सो यहाँ पर आपको एक और फॉर्मूला याद होगा जो मैंने पिछली बार लिखवाया था, और F इज इक्वल्स टू क्यू ई। कुछ याद आया? F इज इक्वल्स टू क्यू ई, लास्ट टू लास्ट लेक्चर या लास्ट लेक्चर के अंदर क्यू ई। सो इसका मतलब है यदि मुझे यहाँ पर E निकालना है तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E should be equals to F by Q। F का फॉर्मूला कितना होता है? फोर्स का होता है mlt माइनस 2 अपॉन Q का होता है 80। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम mlt माइनस 3 a माइनस 1। तो ये आ चुका है E का फॉर्मूला। तो ml3 t माइनस 3 a माइनस 1, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया आपका वाला फॉर्मूला, तो मेरे पास में E का फॉर्मूला आ गया। That's all. So did you understand this? But then comes, sir, don't you think वहाँ पर कुछ गड़बड़ी देखी हुई है? Because यहाँ पर आपने बोला phi is equals to E dot ds। तो phi की जगह पर मैंने क्या डाला? phi की जगह पर तो phi था, E की जगह पर मेरे पास में आ चुका था F by Q, करेक्ट? So E की जगह पर F by Q, तो ये फॉर्मूला मेरे पास में बन चुका है। Q चार्ज करंट इज I is equals to Q upon T, तो Q is equals to IT which is 80, तो ये बन जाएगा mlt minus 3 a minus 1। ट्रू। नाउ लेट्स सी, अब ये जो मेरे पास है फॉर्मूला है, दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, तो phi should be equals to mlt minus 3 a minus 1 into s। s का मतलब सरफेस एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है l स्क्वायर। फॉर्मूला ऐड कर दोगे, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा कितना? ml cube t minus 3 a minus 1, and that's all is the answer, and that's all was the answer. Got it? Next पर आते हैं। So what do you mean by the word Gauss's law? Guys, pretty important topic, इसी के ऊपर में सारे डेरिवेशंस है right from over here till last। कल जाकर के ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आज गॉसेस लॉ के 2 डेरिवेशंस हैं
और कल करीबन 6 डेरिवेशंस और है आपके पास में. नाउ Gauss's law simply says that whenever there is a closed surface, total closed surface, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो closed surface sphere ही होना चाहिए, it can be of any form. So whenever there is a closed surface, so the field lines or the electrical flux associated with that closed surface is always equal to what? 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by it. अब इसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किसी भी जगह से हम एसोसिएट कर रहे हैं या कितना है उसके अंदर, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स उसमें कितना चार्ज है, किसमें कितना चार्ज है, उस बॉडी में कितना चार्ज है. एनक्लोज का मतलब क्या हुआ? यदि कोई चार्ज यहां पर रखा है तो मैंने मान लिया कि आजू बाजू इतने एरिया तक इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गई, तो इस जगह पर इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस. जैसे यहां पर मैंने दिखाया हुआ है, देयर इज अ चार्ज, इस चार्ज को मैं कुछ यहां 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 तक मैं फील कर सकता हूं. सो दिस विल बी नोन एज गॉसियन सरफेस. इस गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. इस गॉसियन सरफेस के ऊपर में गॉसेस ने क्या बोला, इस वाले सरफेस के ऊपर में यदि आपको निकालना है कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, देन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कितना चार्ज है इसमें. यदि चार्ज Q होगा तो आंसर आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4Q होगा तो आएगा 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो गॉसेस थ्योरम सिंपली स्टेट्स दैट total flux associated with any closed surface is always equals to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed with that surface. So total flux should be equals to, इस वाले सिंबल को बोलते हैं सर्कुटल इंटीग्रल. सर्कुटल इंटीग्रल मीन्स टोटल क्लोज सरफेस में पूरा का पूरा कितना चार्ज है. सो दैट इज इक्वल्स टू E डॉट डी एस. अब ये E डॉट डी एस कैसे आया? फाई आप ही ने बोला था E डॉट डी एस के बराबर है, तो मैंने फाई की जगह पर E डॉट डी एस रख दिया. सो इट शुड बी इक्वल्स टू E डॉट डी एस एंड इट शुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड. सर लेकिन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यों लिखा? गाइस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू Q करोगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आता है. ओके, सो गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. Now let's try and prove what is Gauss's law. So there is this particular so-called sphere which is imaginary sphere. ये मैंने गॉसियन सरफेस मान लिया है जो इस पर्टिकुलर चार्ज के आजू बाजू में उसको एनक्लोज किया हुआ है, बंद किया हुआ है. मैंने यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन देखा, मुझे इस जगह पर अपना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है. इसका जो नॉर्मल एरिया वेक्टर है वो है ds और ये रहा मेरा वाला फील्ड E. दोनों के दोनों एक ही लाइन में जा रहे हैं, दोनों के दोनों एक ही लाइन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एंगल कितना होगा? cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? E should be equals to Q upon 4 pi epsilon naught r square. अब ये कहां से आया? आपको जब प्रूव करना है गॉसेस लॉ तो आपको मालूम होगा, अपन ने अभी जैसे यहां पर लिखा था F is equals to QE, करेक्ट? तो इसका मतलब है E should be equals to F by Q. F का मतलब होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और साथ में Q भी है तो एक Q से एक Q कट, ये आता है आपके पास में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. तो ये आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड. सो ये तो मेरे पास में पहले से ही फॉर्मूला चला हुआ आ रहा है. अब मैं देखता हूं मुझे गॉसेस थ्योरम प्रूव करनी है, तो कैसे करूंगा? We know that according to the Gauss's theorem, phi E should be equals to circuital integral of E dot ds should be equals to Q upon epsilon naught time, right? Phi E की जगह पर phi E dot ds का मतलब E ds cos 0, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही लाइन पे हैं, दोनों में एंगल बन रहा है 0. It should be equals to Q upon epsilon naught प्रूव करना है मुझे. जब मैं सर्कुटल इंटीग्रल करूंगा तो आप जानते हो कि इंटीग्रेशन से ये सो कॉल्ड ds कैंसिल हो जाता है, बिकॉज इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव. तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. नाउ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और ds की जगह पर इंटीग्रेशन से d कैंसिल, तो ये आ गया s. नाउ d कैंसिल नहीं होता है इंटीग्रेशन के अंदर, मतलब वो एंटी डेरिवेटिव होता है. तो बहुत छोटे छोटे एरिया का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास में पूरा बड़ा एरिया आ जाएगा. बड़ा इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 पाई r स्क्वायर.
सो Q की जगह पर Q, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर की जगह पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, वो कहां से आया? बिकॉज मैंने E की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी थी। अब सरफेस एरिया की जगह पर 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सो गॉसेस थ्योरम को प्रूव करना बहुत बहुत सिंपल है। एक डायग्राम बनाओ, क्रॉस सरफेस बनाओ, E और ds की डायरेक्शन सेम करो, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट रखो, उसके बाद में यहां पर लिख दो फाई E इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन से ds का वाला पार्ट कैंसिल करोगे तो वो बचेगा s का मतलब होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, कैंसिल कर दो, आंसर आ गया। Pretty important derivation, guys. Let's move on to the last derivation of today. Derivation of Coulomb's law from Gauss's law. बहुत common question है for the state board as well as for the CB. Derivation of Coulomb's law from Gauss's law. So what can be the derivation of Coulomb's law? आपको मालूम है Coulomb's law का मतलब होता है, हमें लास्ट में प्रूव करना है F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q by R square. So let's see. मैंने पहले Gauss's law लिखा, the total flux associated with a closed surface is always equals to 1 by epsilon naught times the charge enclosed. तो ये मैंने स्टेटमेंट लिखा। phi E is equals to circular integral E dot ds cos 0, दोनों के दोनों सेम लाइन, वही सेम। ये आ गया सिग्मा E dot ds should be equals to Q by epsilon naught, सेम, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किया। अब गाइज यहां पर ये जो ds है, जब मैं इंटीग्रेशन से ds करूंगा तो इसका मतलब है केवल सरफेस एरिया आएगा। सरफेस एरिया की जगह पर मैंने लिख दिया 4 पाई r स्क्वायर, क्यों? सरफेस। तो E डॉट 4 पाई r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ब्रिंग दिस 4 पाई r स्क्वायर ओवर हियर, तो ये बन गया E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अभी आप ही ने फॉर्मूला बोला था F इज इक्वल टू QE होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया F इक्वल टू QE। Q की जगह पर Q, E की जगह पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। Q इंटू Q विल बिकम Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब आप बोलोगे लेकिन ये कहाँ है डेरिवेशन? ढंग से देखो, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, Q square by R square 1 upon 4 pi epsilon naught. This is the derivation of Coulomb's law, hence proved, that's all done. So guys, we'll be stopping it right over here. Now I could have done around 3 more derivations, but वो चूंकि guys application के टॉपिक के अंदर है और सारे के सारे application बहुत ज़रूरी हैं, so we'll be discussing tomorrow in the long lecture all the applications. There would be around 6 derivation for spherical shell, for sphere, for solid sphere, for non-uniformly charged shell, then for the plane sheet, then charges placed between the plane sheet and so on and so forth. So guys, be with me tomorrow. Tomorrow we would be able to complete the entire Gauss's theorem का, कल पूरा का आर्ट कंप्लीट हो जाएगा। Today is 27th, तो 28th को आपका Gauss's law इन एंटायर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, एंड 29 एंड 30 को कैपेसिटेंस, सीरीज, पैरेलल, विद डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, सारा का सारा कंप्लीट, देन ओनली न्यूमेरिकल्स। Thank you guys so much. Enjoy the day. Bye bye. See ya. And do watch the video of chemistry. Enjoy guys. Thank you. Bye.